Good morning all students. Welcome back in our online session for Maths 2. In Maths 2, our current topic is circle and subtopic arc of a circle. Today we are going to see practice set exercise 3.3, not 3.2. Here by mistake I write here 3.2. Here you have to correct here 3.3. 3.3. ओके आज हम 3.3 के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं. इन प्रीवियस सेशन ऑलरेडी वी हैड सॉल्व 3.2 एग्जाम्पल्स using property. Today we are going to solve practice set 3.2. In previous session we had seen theorem. Which theorem? The chord corresponding to congruent arc of a circle are congruent. The chord corresponding to congruent arc of a circle are congruent. Means अगर दिए गए सर्कल में टू आर्क अगर कॉन्ग्रुएंट है उनका मेजरमेंट, देन देयर करस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड्स होते हैं बोथ आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट. इन इनवर्स इसके उल्टा, इफ करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट. मतलब अगर किसी सर्कल में कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग जो भी आर्क हो गए दे आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट. ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू सॉल्व सम एग्जाम्पल. अगेन learn the property sum of arc. Okay, then let's start our session. Our second example you can see on the screen. In the given figure, triangle QRS is an equilateral triangle. In the given figure, triangle QRS is an equilateral triangle. Prove that first arc RS congruent or QS congruent or QR. You have to prove that first arc RS congruent to arc QS congruent to arc QR. And second question to prove that measure of arc QRS is equal to 240 degree. देखो क्वेश्चन समझ में आया आपको? आपको जो सर्कल की फिगर दी है, डायग्राम दी है, उसमें एंगल ट्राइंगल QRS इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. QRS इक्विलेटरल ट्राइंगल है. टू प्रूव दैट फर्स्ट क्या प्रूव करना है आपको? जो माइनर आर्क्स है RS, QS एंड QR, ऑल दीज आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. हमें वो शो करना है, प्रूव दैट करना है. एंड देन सेकंड यू हैव टू शो दैट मेजर ऑफ आर्क QRS इज इक्वल टू 240 डिग्री. मीन्स QRS का मेजरमेंट होगा, आर्क QRS का मेजरमेंट 240 डिग्री. चलो हम सॉल्यूशन करते हैं. फर्स्ट सी द फिगर. दिस इज सर्कल. ऑन सर्कल Q पॉइंट, R पॉइंट एंड S पॉइंट आर गिवन and Q, R and S. The equilateral triangle you can see here QRS is a equilateral triangle. If QRS is equilateral triangle, then QR is equal to RS is equal to QS. आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्वालिटी कि जो उनकी ऑल साइड्स होती है वो कैसे होती है? इक्वल होती है. QR is equal to RS is equal to QS because QRS is a equilateral triangle. So write down here in solution triangle QRS is equilateral triangle which is given. Therefore segment RS congruent to segment QS congruent to segment QR. Why? Side of equilateral triangle. हमने QRS जो आपको दिया है क्वेश्चन में विच इज इक्विलेटरल, इसलिए हमने यहाँ पे
फर्स्ट स्टेप में बताया कि सेगमेंट आर एस कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू एस कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू आर बिकॉज दे आर साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल. साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल. इक्विलैटरल की ट्राइंगल की उस साइड से, इसलिए ऑल साइड्स आर इक्वल कॉन्ग्रुएंट. अभी रिसेंटली प्रीवियस सेशन में आपने देखा, अगर किसी सर्कल में कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे से, तो उनके करस्पॉन्डिंग जो आर्क हो गए दे आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट. दे आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट. सो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी यू कैन शो आर्क आर एस दिस आर्क क्यू एस दिस आर्क and RQR these are all threes are also congruent. So write down here. But RS, QS and QR are the chord of a circle. RS, QS, QR इक्विलैटरल ट्रायंगल QRS के साइड से, लेकिन सर्कल के अगर बेस पे अगर हम देखेंगे तो RS, QS and QR are the chord of a circle. And all these chords are congruent, then you can directly say arc RS congruent to arc QS congruent to arc QR. वही प्रॉपर्टी यूज करनी है हमें यहाँ पे. सो बाय थ्योरम करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ congruent chords of a circle are also congruent. Using by theorem, corresponding arc of congruent chords of a circle are also congruent. Means किसी सर्कल में अगर chords congruent है 2 या 3, तो उनके corresponding जो arcs हो गए they are also congruent. Using this property you can directly show, therefore RS congruent, RQS congruent, RQR. RS congruent, RQS congruent, RQR. This is our first proof. Question we prove using the property of equilateral triangle and theorem corresponding arc of congruent chord of a circle are also congruent. दोनों प्रॉपर्टी का यूज करके हमने फर्स्ट जो प्रूव दैट था कि जो 3 आर्क आपको दिख रहे हैं माइनर दे आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, हमने शो कर दिया, दिखाया, प्रूव किया. नाउ सेकंड यू हैव टू शो मेजरमेंट ऑफ आर्क क्यू आर एस इज इक्वल टू 240 डिग्री. डायग्राम में देखो क्यू आर एंड एस मीन्स दिस आर्क होल आर्क, इसका मेजरमेंट आपको फाइंड आउट करना है. सो अगर आप फिगर का अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेंगे, हमें किसी आर्क का मेजरमेंट पता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें क्यू आर एस को 240 दिखाना है. ओके, क्यू आर एस समझ में आ रहा है ना आपको? मैं आपको पेन से दर्शाती हूँ यहाँ पे. ये जो क्यू आर एस हाईलाइटर का यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे. ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ से क्यू पॉइंट से शुरू होकर क्यू आर यस, ये जो आपको दिख रहा है पूरा यहाँ तक, ये जो आर्क है इसका मेजरमेंट हमें 240 दिखाना है. ओके, लेकिन हमारे पास कोई किसी भी आर्क का मेजरमेंट नहीं है, ना सेंटर एंगल का मेजरमेंट है. ओके, तो कैसे प्रूव करना है हमें सोचना पड़ेगा. तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो क्यू आर है, आर एस है और क्यू एस है, ये जो माइनर आर्क्स है उनका मेजरमेंट हम एक्स मान लेते हैं. ओके, और उसके आधार पर ये जो तीनों माइनर आर्क है ये पूरा सर्कल को कवर कर रहे हैं. तो मीन्स तीनों आर्क का जो समेशन होगा विच इज़ इक्वल टू 360 डिग्री होगा. तो उसका आधार लेकर हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं. सो लेट मान लेते हैं मेजर ऑफ आर्क आर एस इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क क्यू एस इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क क्यू आर इज इक्वल टू एक्स. दिस इज वन इक्वेशन. बट मेजर ऑफ आर्क आर एस प्लस मेजर ऑफ आर्क क्यू एस प्लस मेजर ऑफ आर्क क्यू आर इज इक्वल टू 360 डिग्री.
मेजर ऑफ ऑल आर्क्स। ये तीनों माइनर आर्क का पूरा सर्कल कवर करता है, इसलिए तीनों का जो सम होगा, समेशन होगा, वो पूरे सर्कल का ही मेजरमेंट होगा, विच इज़ 360 डिग्री। ओके, तो इसको हमने एक्स मान लिया है तीनों को। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स डिग्री। सो measure of RS x plus measure of RQS x plus measure of RQR x। हमने x को पुट कर दिया है, x प्लस x इज इक्वल टू 360 फ्रॉम 1। x से हमने लिया है क्योंकि उसको x मान लिया है, x डिग्री। x प्लस इज इक्वल टू ऑन नेक्स्ट स्टेप 3x इज इक्वल टू 360। अभी हमें x फाइंड, देन 3x इज इक्वल टू 360 एंड नेक्स्ट स्टेप। Therefore, x is equal to 360 upon 3. 360 upon 3. Now you can divide 360 by 3. 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6 and 0 remain as the same. So you get x is equal to 120. X is equal to 120. Then therefore measure of RS is equal to measure of RQS is equal to measure of RQR is equal to 120 डिग्री। हमें x की वैल्यू मिली है 120 डिग्री, और हमने x डिग्री के कौन से आर्क के लिए माना था? आर्क RS, RQS एंड RQR के लिए हमने x अंश मान लिया था। सो आफ्टर गेटिंग x इज इक्वल टू 120, you can write here measure of RS is equal to measure of RQS is equal to measure of RQR is equal to 120 डिग्री। ओके, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है? यू हैव टू फाइंड आउट RQRS। QRS जो येलो दिख रहा है ना आपको, हाईलाइट किया है मैंने, ये आर्क आपको फाइंड आउट करना है। यू हैव टू फाइंड आउट दिस QRS। QRS is a summation of RQR, this portion, and this portion RS. So I write here, ये दोनों का योगफल समेशन है, इसलिए QRS का मान मिलेगा हमें। So I write here RQRS is equal to measure of RQR plus measure of RS. Put the value of QR and RS, RQR and RS, which is 120 is equal to 120 प्लस 120। यहाँ पे हमने RQR का और RS का जो हमने फाइंड आउट किया था x मान लेकर, वो 120 हमने यहाँ पे पुटअप किया। आफ्टर एडिंग यू गेट मेजर ऑफ RQRS इज इक्वल टू 240। 120 प्लस 120 इज इक्वल टू 240। यही हमें प्रूव करना था कि RQRS का जो माप है 240 दिखाना है। ओके, तो इस तरह से हमने ये भी एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व किया है। इस तरह से कुछ और एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं, अलग अलग मेजरमेंट लेके आर्क का। आज के लिए